Which plan is better, ICICI Lombard Elevate or HDFC Ergo's Optima Secure? Now, both are well-known big private banks, both are well-known insurance companies. But when comparing products, I'm sure it's not just the brand that matters to you and me. What also matters is to understand the fine print in the core benefits and even more, their claims track record. And that's what we will be bringing to you in this video. Using my 20 years of experience and deep data-backed research from ILM Research, I'll break down both these plans clearly for what matters to you and me. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. Now, here's what we will be covering in this video. Number one, a comparison of all the unique features with the fine print. Two, a quick roll call of all the core benefits and the waiting period and the fine print of these core benefits. Number three, a detailed look at the real world service experience, starting with customer service and most importantly, claims experience. And finally, a quick comparison of the pricing. One thing before we jump into the review. Look, health insurance is full of terms and conditions, legal jargon, medical jargon. While I'll try to keep it easy for you to understand, at any point, if you feel confused and want to have a personalized one-to-one conversation with industry experts, you can always consult India's top 5% insurance experts only on Beshak.org for completely free. Mind you, these experts are not call center freshers, but real experts with real experience. Click the link in the description below to book a free consultation today. Now moving on to the USPs. The biggest USP that HDFC Optima Secure launched with is the 2x cover. मतलब आप जो भी सम इंश्योर का प्लान ले रहे हो, आपको पहले दिन से 2x कवर मिलता है. आप 10 लाख लेंगे तो आपको 20 लाख मिलता है. That is the first and the most important USP that कोई भी आपको HDFC Optima Secure बेचेगा, बताएगा तो बताएगा. Next is basically the features now that we will compare will be the features that are comparable between both these plans. Okay, the next USP of HDFC Ergo's Optima Secure is basically an add-on which gives you unlimited one-time claim in your life if the sum insured is less than 50 lakhs and 2 unlimited claims in your life if the sum insured is 50 lakhs or above. This basically is an add-on that is available in this plan. ये usually useful है for a lot of people who basically, and a lot of people, maybe almost everybody today, who feels that ठीक है मैं जो sum insured ले रहा हूँ that is usually going to be great, but I may have that one black swan moment in my life where basically मुझे जो sum insured जो भी होगा वो कम गिरने वाला है. Like a lot of people worry about this, and that's why this feature is now becoming very common with most insurance plans, and hence it's also available in ICICI Lombard. ICICI Lombard also gives you an unlimited claim option, basically where you can take an add-on and once in your lifetime you will be able to make an unlimited claim. Now the difference is basically what I'm seeing here is the premium. The difference in the premium is that ICICI Lombard आपको ये जो एक standard जो हम लोग एक यूज केस लेते हैं कि ऑफ मिस्टर कुमार हु इज 30 ईयर ओल्ड एंड इज कवरिंग विद हिज फैमिली, इसमें प्रीमियम जो डिफरेंस आ रहा है इज बेसिकली 1396 इन द केस ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड 3163 रुपीस इन द केस ऑफ एचडीएफसी अर्गो. तो थोड़ा प्रीमियम में डिफरेंस है. तो ये थे दो यूएसपीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएसपीज थे एचडीएफसी अर्गो के. नाउ वी विल बी मूविंग टू द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड्स यूएसपीज. द फर्स्ट यूएसपी इज दैट यू गेट एन ऑप्शन टू गेट अ अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ऑप्शन. मतलब एक तो मैंने आपको जो बताया कि एक टाइम लाइफ में आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ले सकते हो. ये जो ऑप्शन है आपको लाइफ लॉन्ग एवरी ईयर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन देता है. मतलब जैसे आप चूज करते हो 10 लाख का सम इंश्योर्ड, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड, यू कैन चूज द अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ऑप्शन. इसमें मैंने एक बार प्रीमियम निकाला था, तो प्रीमियम जो आया था अराउंड 3 टाइम्स प्रीमियम ऑफ 10 लाख सम इंश्योर्ड में आपको ये कवर मिल जाता है. इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो दैट इज द फर्स्ट यूएसपी ऑफ दिस प्लान. सेकंड यूएसपी ऑफ दिस प्लान इज बेसिकली द सेपरेट वर्ल्ड वाइड कवर एड ऑन. तो आप इसमें एक एडिशनल एड ऑन ले सकते हो वर्ल्ड वाइड कवर का, जिसमें बेसिकली फॉर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन यू कैन गेट अ वर्ल्ड वाइड कवर. आपको सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी आप कवर ले सकते हो. इसमें एक वेटिंग पीरियड है 2 इयर्स का. जैसे आप प्लान खरीदेंगे तो फर्स्ट ईयर इमीडिएटली यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम इन दिस प्लान. यू विल हैव अ 2 ईयर वेटिंग पीरियड. फ्रॉम द थर्ड ईयर यू विल बी एबल टू क्लेम. थोड़ा पैसा अगर ज्यादा देंगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको 2 साल को 1 साल करने को रेडी है. तो वो एक चीज है. ये सेपरेट कवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा कि सेपरेट वर्ल्ड वाइड कवर एड ऑन है. इसका मतलब ये है कि द बेस कवरेज रिमेन सेपरेट. यू हैव अ सेपरेट कवर फॉर वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटलाइजेशन जो आप इंडिया के बाहर करते हैं. इसमें 2 टर्म्स एंड कंडीशंस है जो समझना बहुत जरूरी है. फर्स्ट है कि कैशलेस ही अवेलेबल है. आप ऐसे नहीं है कि आप रीइंबर्समेंट कर सकते, कोई भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं. अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे जा रहे हैं
और आपको ट्रीटमेंट लेना भी है तो आपको बेसिकली नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके कैशलेस ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सेकंड जो है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के कारण मतलब अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ रहा है तो टिपिकली आप ट्रैवल कर रहे थे, तभी आप मतलब ट्रिप पे थे, आप कोई बिजनेस ट्रिप पे या आप कोई प्लेजर ट्रिप पे थे, तो उसके केस में एक कंडीशन है जो समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो ट्रिप है वो 45 डेज से नीचे का होना चाहिए। और अगर आप पूरे साल में बहुत बार ट्रैवल करते हैं तो टोटल जो आपके ट्रिप्स के टोटल नंबर ऑफ डेज है वो 90 डेज के नीचे होना चाहिए। ये एक टाइप से जो ट्रैवल इंश्योरेंस में जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है, हेल्थ केयर कवर होता है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश है। जनरली प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लेने के लिए ज़्यादा मीनिंग पड़ता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि कैशलेस में 2 ईयर वेटिंग पीरियड में सेपरेट कवर आपको मिलता है। बहुत अच्छा ऐड ऑन है अगर स्पेसिफिकली आप सोच रहे हैं कि कभी मुझे बाहर जाके भी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज बोनस। नाउ बोनस में जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टिपिकली 20% बोनस देता है आपको, विच इज नॉट लिंक टू क्लेम्स। आपको बेसिकली लॉयल्टी बोनस मिलता है, आप क्लेम करें या ना करें एवरी ईयर आपका 20% से सम इंश्योर्ड बढ़ता है, 100% तक जाता है ये। बट इफ यू टेक एन एड ऑन देन दे गिव यू अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड इंक्रीज एज पर द लॉयल्टी बोनस फीचर दैट दे हैव। तो टिपिकली आप 100% सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं हर साल आप जब रिन्यू करोगे, और इसका कोई अक्यूमुलेशन लिमिट नहीं है। आप जब तक पॉलिसी को रिन्यू करेंगे आपका 100% से सम इंश्योर्ड बढ़ते जाएगा। अगर आपने 20 लाख का कवर लिया है तो नेक्स्ट ईयर 40 लाख, अगले साल 60 लाख, क्लेम करो या ना करो बढ़ते जाएगा। बहुत अच्छा फीचर है ये। बेसिकली आपको सम इंश्योर्ड अगर हाई लेना है तो ये यूजफुल है। अगेन दिस इज एन एड ऑन, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऑप्ट इन करना है इसमें, तो आपको ये फीचर मिलेगा। तो ये थे सारे यूएसपीज ऑफ बेसिकली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट and HDFC Ergo Optima Secure. Okay, one thing before we move forward, in case of bonus, I will also give a comparison of bonus here only for HDFC Ergo, वरना बेसिकली क्या होगा कि फिर मुझे आना पड़ेगा बोनस पे। तो HDFC Ergo के केस में बोनस बहुत प्लेन एंड सिंपल है, लॉयल्टी बोनस है, इट डज नॉट बेसिकली लिंक टू क्लेम्स। आपको 50% पहले साल में मिलता है और मैक्सिमम है जो 100% मिलता है। तो इसमें जो है आप जो भी कवर जो लेने वाले, एक तो आपको 2x पर डे फॉर डे 1 पे मिलेगा, और फिर आपको बेसिकली 50% और 50% और मिलेगा, उतना ही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में जैसे मैंने कहा कि 100% एवरी ईयर मिल सकता है अगर आप एड ऑन लेते हैं, और अनलिमिटेड अक्यूमुलेशन हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो वी कंपेयर्ड बोथ ऑल्सो। नाउ वी विल मूव टू कंपैरिजन ऑफ द कोर बेनिफिट्स। कोर बेनिफिट्स में कंपैरिजन काफी स्मूथ एंड सिंपल है, एक दो जगह पे है जो समझना बहुत जरूरी है, प्लीज कीप योर अटेंशन हियर। फर्स्ट इज आईपीडी, रूम रेंट एंड आईसीयू लिमिट। आईसीयू और रूम रेंट लिमिट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से काफी क्लेम्स में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा कट जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर कीप्स इट वेरी सिंपल, आपको जो रूम चाहिए आप ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है रूम रेंट पे ना रूम कैटेगरी पे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको डिफॉल्ट में मिलता है, जो सबसे चीपेस्ट रूम होती है सिंगल प्राइवेट एसी रूम, जो भी हॉस्पिटल आप चूज कर रहे हैं उसमें आपको वो मिलेगा। अगर आपको इसको एनी रूम करना है तो यू हैव टू पे एन एडिशनल प्रीमियम एंड देन गेट दैट एड ऑन। तो अगर आप ये प्लान ले रहे हैं तो एक मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि ये वाला एड ऑन आप भूलना मत, डेफिनेटली ये एड ऑन लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये रूम अवेलेबल नहीं होता है। आपको लगता है कि ठीक है सिंगल प्राइवेट एसी रूम इज गुड इनफ, बट इट मे नॉट बी अवेलेबल एंड यू मे हैव टू बी फोर्स्ड टू टेक अ डीलक्स रूम और अ मच हायर रूम, एंड देन देयर विल बी प्रोपोर्शनल डिडक्शन। तो क्लेम में काफी बड़ा डिडक्शन होता है, तो समझना बहुत जरूरी है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 60 180 डेज इन केस ऑफ एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर, इन केस ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इट्स 90 एंड 180 डेज, थोड़ा बेटर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में, बट ये फेयर एंड सिंपल है। इसमें मेजर आपको कोई रेड फ्लैग नहीं है, दोनों प्लान्स में सही है। डे केयर ट्रीटमेंट्स, ऑल ट्रीटमेंट्स कवर्ड इन बोथ द केसेस। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट में एक थोड़ा डिफरेंस है। HDFC Optima Secure keeps it very simple, no exclusions, no limits. ICICI Lombard के केस में they have put a exclusion for 17 illnesses like asthma, diabetes, hypertension. ये बेसिकली बोल रहे हैं कि आप अगर घर पे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो ये वाले जो 17 डिजीज है इसके लिए आप घर पे हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाएंगे। HDFC keeps it very simple, बोल रहे हैं कि आप कर सकते हैं। दोनों के केस में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे नहीं है कि आप जाके कभी भी हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। इस सब में आपको प्री अप्रूवल्स यूजुअली आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जो घर पे होती है वो प्लान्ड ही होती है, तो यू विल ऑलवेज हैव टू टेक अ pre-approval from insurance companies anyways. Modern treatment, no limits in both the cases. Organ donor also no limits in both the cases. So these were the core benefits जिसके कारण आपका हॉस्पिटल बिल कट सकता है, आपको कोई बड़ा डिडक्शन हो सकता है, तो वो सारे हमने कवर कर दिया। नाउ मूविंग टू गुड टू हैव बेनिफिट्स। 3 गुड टू हैव बेनिफिट्स है जो क्विकली हम समझेंगे। एक तो है कंज्यूमेबल्स कवर। ये जो होता है कि नॉन मेडिकल जो खर्चे होते हैं हॉस्पिटल बिल में वो टिपिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, तो इस केस में अगर आपको कंज्यूमेबल्स कवर चाहिए तो टिपिकली इंश्योरेंस कंपनीज एड ऑन रखती है। बट एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर अगेन हैज केप्ट इट वेरी सिंपल फॉर 68 लिस्टेड नॉन मेडिकल आइटम्स। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आपको इनबिल्ट कवर मिलेगा, आपको कोई एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन बेसिकली गेट अ कवर फॉर कंज्यूमेबल्स एज अ डिफॉल्ट इन एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर। इन केस ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये 68 लिस्टेड जो मेडिकल नॉन मेडिकल आइटम्स है वो कवर हो सकता है, बट आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है।
अगेन जैसे मैंने बोला रूम रेंट के लिए आप जैसे सोच रहे हैं, तो ये वाले जो अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ले रहे हैं तो आपको एड ऑन्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने प्लान ही ऐसे बनाया कि एक बेस प्लान बनाया और फिर उसके बाद आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, वही अप्रोच है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। तो इसीलिए ये भी एक एड ऑन है। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन बेनिफिट। इन केस ऑफ रिस्टोरेशन बेनिफिट, बोथ हैव रिस्टोरेशन बेनिफिट। Refills once for HDFC Optima Secure, applicable for all illnesses, triggers on partial exhaustion। फर्स्ट क्लेम के लिए ट्रिगर नहीं करता है, सेकंड क्लेम से ट्रिगर करता है। आप एड ऑन अगर खरीदते हैं इसमें तो आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसके केस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड थोड़ा अलग है। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि एड ऑन सारे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ है, बट इसमें उल्टा है। इसमें बेसिकली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अनलिमिटेड रिस्टोरेशन आपको डे 0 से दे दिया है, आपको डिफॉल्ट में दे दिया है, आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। एप्लीकेबल अगेन फॉर ऑल इलनेसेस, ट्रिगर्स फॉर पार्शियल एग्जॉशन। सेम लाइक एचडीएफसी अर्गो, इसमें भी ट्रिगर सेकंड क्लेम से होता है, पहले क्लेम से ट्रिगर नहीं होता है। कुछ ही प्लान्स है इंटरेस्टिंगली जहां पे फर्स्ट क्लेम से भी होता है, वरना रिस्टोरेशन का जो बेस बेनिफिट है वो सेकंड क्लेम से ही एप्लीकेबल होना चाहिए। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत आगे बढ़कर एक एक्स्ट्रा माइल में आपको पहले क्लेम से भी देती है, ये दोनों कंपनी तो नहीं देती है। नेक्स्ट इज मैटरनिटी एक्सपेंसेस। नाउ बोथ ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर यू एन एड ऑन। थोड़ा डिफरेंट है तो वो समझ लेते हैं क्विकली। इन केस ऑफ एचडीएफसी अर्गो 50,000 से 2 लाख के ऑप्शंस है और 2 साल का वेटिंग पीरियड है। इन केस ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक अगर आपको ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप 10 लाख के नीचे सम इंश्योर्ड ले रहे हैं तो आपको 50,000 60,000 जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उसके का 10% मिलेगा। और 10 लाख के ऊपर मैक्स लिमिट जो दी है वो है 1 लाख की। तो बेसिकली सम इंश्योर्ड ऑप्शन इन केस ऑफ मैटरनिटी इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड टू मैक्सिमम 1 लाख एंड 2 ईयर वेटिंग पीरियड यहाँ पे भी है। जैसे एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर में आप थोड़ा पैसा और देके उसको 1 ईयर भी कर सकते हैं। तो जो यंग कपल्स है, जो अभी रिसेंटली मैरिड है और बेसिकली प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। आप देख सकते हैं इसको, प्रीमियम देख लीजिए। लिमिट्स बेसिकली जो है वो है 50,000 से 2 लाख इन केस ऑफ एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में अप टू 1 लाख है। Now, before we move to the waiting periods, the exclusions, one important fine print in case of ICICI Lombard that needs to be understood is the material change clause. ये HDFC Optima Secure में नहीं है, ICICI Lombard में। ये क्लॉज के हिसाब से बेसिकली वो बोलना क्या चाहता है, क्लॉज ये बोलना चाहता है कि आपने पॉलिसी तो लाइफ लॉन्ग ली है, पॉलिसी आईडीए के हिसाब से लाइफ टाइम के लिए रिन्यूएबल होती है, बट ये इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि अगर आपके कोई भी ऑक्यूपेशन में, लोकेशन में या आपकी हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री में कोई चेंजेस आती है, तो इंश्योरेंस कंपनी हैज द चॉइस to reduce your sum insured, reduce your terms, limit your terms और charge you extra premium। ये एक्चुअली आईआईडीए के ट्रू स्पिरिट जो रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट है। इसके ऊपर हमने काफी बड़ा एक पोस्ट किया था जो काफी वायरल भी गया था। उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, नॉट आईआईडीए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड केम अप विद अ क्लैरिफिकेशन, अ पब्लिक क्लैरिफिकेशन, वेयर दे सेड कि बेशक की जो पोस्ट है उसके ऊपर हम एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि हम ये चीज नहीं करेंगे, ये होगा हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में, बट इट इज लिंक्ड टू सम अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हेंस द इंटरप्रिटेशन इज दैट वी विल नॉट डू इट, सो नथिंग टू वरी अबाउट। ये जो अगर प्लान आप क्लियर है तो ये जो हमारा जो सर्कुलर है जो हमने बात की अभी इसके ये वीडियो में, वो सर्कुलर आपके पास जरूर रखना, उसका प्रिंट आउट फैमिली को भी देके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है आपके लिए। नाउ मूविंग टू द वेटिंग पीरियड्स। वेटिंग पीरियड्स बहुत स्टैंडर्ड एक्चुअली, जो दोनों के लिए एप्लीकेबल। आईआईडीए के जो वेटिंग पीरियड है 30 डेज बोथ के केस में है। जहाँ पे पहली बार आप पॉलिसी खरीदते हैं तो फर्स्ट 30 डेज सिर्फ एक्सीडेंट क्लेम्स होते हैं, सिकनेस क्लेम नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक एडिशनल कंडीशन है कि 90 डेज के लिए बीपी, डायबिटीज और कार्डियक के जो क्लेम्स होते हैं वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। ये अगर आपने जब पॉलिसी ली है और आपने एग्जिस्टिंग डिजीज में डिक्लेयर नहीं किया है बीपी, डायबिटीज और कार्डियक, और आपने पॉलिसी लेने के 3 महीने में 90 डेज के अंदर आपको ये तीनों के कारण आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो वो ये इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है मैं क्लेम पे नहीं करूंगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। नेक्स्ट जो वेटिंग पीरियड है वो है 2 ईयर वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट्स। इसके केस में, दोनों के केस में 2 ईयर वेटिंग पीरियड है। एक डिफरेंस है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपको एक एड ऑन देता है, इसके कारण आप ये रिड्यूस कर सकते हैं 2 साल को 1 साल। तो ये कुछ एक लिस्ट ऑफ इलनेसेस होती है जो मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज आपको 2 साल के लिए वेटिंग पीरियड रखती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपको यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन दे रहा है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे कस्टमाइजेशन है। नेक्स्ट इज बेसिकली पीडी वेटिंग पीरियड। पीडी वेटिंग पीरियड भी समझना बहुत जरूरी है। जिसको भी एग्जिस्टिंग डिजीजेज है प्लान लेने के टाइम पे, उसके लिए तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ एज पर आईआईडीए रेगुलेशंस गिव यू अ स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड ऑफ 3 years, बट देयर आर सम मॉडिफिकेशन दैट आर अवेलेबल। सो एचडीएफसी अर्गो आपको अलाउ करता है फॉर स्पेसिफिकली 4 डिजीजेज, जिसको हम टिपिकली ए बी सी डी बोलते हैं, एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। इसके केस में अगर आप एडिशनल प्रीमियम पे करते हो तो आपको 30 डेज में आपको कवर मिल जाएगा, ये चारों डिजीज में आपको कोई भी क्लेम आता है तो। इन केस ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उन्होंने 4 की जगह पे 6 रखे, जहां आपको वो ये 6 डिजीजेज है जो मैंने बोले 4 एबीसीडी, उसको छोड़ के ओबेसिटी, और अगर किसी को एंजियोप्लास्टी हुई है और 1 साल कंप्लीट हो गया उनका, तो वो इसमें ये वाला एड ऑन लेके
आपको 30 डेज का वेटिंग पीरियड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 3 ईयर। ऑब्वियसली 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम पे करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी की कॉल है ये आपको दे या ना दे, बट ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये कोई भी डिजीज़ है तो ये आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है। और एक वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देता है, बेसिकली कि ओवरऑल जो वेटिंग पीरियड है, पीईडी वेटिंग पीरियड है, जहाँ पे बेसिकली 3 ईयर्स है, उसको आप 2 साल कर सकते हो और 1 साल भी कर सकते हो। प्रीमियम पे करना है और इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड्स कम कर देंगे। ये जो ये 4 डिजीज़ है उसको छोड़ के, ये 6 डिजीज़ सॉरी इन केस ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उसके छोड़ के अगर आपको कोई डिजीज़ है और उसका वेटिंग पीरियड आपको कम करना है, तो यू कैन पे प्रीमियम्स एंड रिड्यूस इट टू 1 ईयर and 2 years also, depending on whatever premium and whatever is basically suitable for you. Now moving to the customer service ratings. Customer service ratings में, as we always say, there is no public disclosure or IRDA reports which tell you about how a company is doing well in service, मतलब जो basically response देती है या communication करती है, तो हमने हमारे खुद के audits के through ये ratings निकाली है. In case of toll free number, both are rated as average, so both are as good as any other company in the industry, or both are as bad as them. The second is response time on Twitter. ट्विटर में रिस्पॉन्स में HDFC अर्गो एवरेज है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्लो में आ रहा है। बेसिकली अगर आप ट्विटर पे कंप्लेन करने जाएंगे, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ट्विटर पे, आपको स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर ऑडिट्स। बहुत सारे लोग ट्विटर पे कंप्लेन नहीं भी करते, बट दिस गिव्स यू अ नाइस प्रीव्यू अबाउट हाउ इंश्योरेंस कंपनी बिहेव्स when they get complaints on an open forum. So that's why हम लोग इस चीज को कवर करते हैं। Okay, moving on to claims experience. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज एक इंश्योरेंस कंपनी सारे फीचर्स के वादे कर सकता है, प्रोमिसेस कर सकता है, बहुत अच्छे एड्स बना सकता है, सब कुछ करता है, फाइनली तो क्लेम्स पे करने हैं, राइट? तो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम कंपेयर करते हैं क्लेम्स के लिए, जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्विकली। स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट, मतलब क्लेम 30 डेज में एक इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम सेटल करते हैं, जितने भी क्लेम मिलते हैं 30 डेज में कितने सेटल करते हैं। इन केस ऑफ HDFC अर्गो द नंबर इज 96.63% क्लेम्स. In case of ICICI Lombard, it's 99.94% claims. So ICICI Lombard faster है in claim settlement compared to HDFC Ergo. Next is claim complaints. एक कंपनी है जिसको क्लेम्स आ रहे हैं बहुत सारे, वो क्लेम्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स कितने आ रहे हैं, राइट? कितने लोग अनसेटिस्फाइड है विद द क्लेम्स इज व्हाट यू कम टू नो बाय दिस. 0.15% इन केस ऑफ HDFC Ergo, 0.14% इन केस ऑफ ICICI Lombard. दोनों इक्वली गुड और बैड है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, नॉट बैड नॉट गुड. टिपिकली अगर मैं कंपेयर करूँ बहुत सारी दूसरी कंपनीज के साथ, तो ये अच्छे नंबर्स है, दोनों के नंबर्स काफी अच्छे हैं. नेक्स्ट इज इंकर्ड क्लेम रेशियो. इंकर्ड क्लेम रेशियो बेसिकली इज अ रेशियो व्हिच टेल्स यू कि एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपया प्रीमियम कलेक्ट करे तो क्लेम्स कितना पे करती है उसमें से. तो टिपिकली हमारा जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि हम बोलते हैं कि 60 to 80 के बीच में होना चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं बनाना चाहिए और लॉस भी नहीं करना चाहिए. प्रॉफिट इसलिए नहीं बनाना चाहिए ज्यादा क्योंकि ऑब्वियसली क्लेम्स पे करने चाहिए, और लॉस इसलिए नहीं करना चाहिए वरना अगर लॉस करेंगे तो दे विल इंक्रीज द प्रीमियम्स एंड दैट इज व्हाट यू एंड आई विल हैव टू पे. सो 60 to 80 होना चाहिए, दोनों 60 to 80 के ऊपर है. In case of HDFC Ergo, it's 87.04% as we speak and 85.53% in case of ICICI Lombard. तो ये थोड़ा एक छोटा सा रेड फ्लैग है कि दोनों के इंकर्ड क्लेम रेशियो ज्यादा है. उसका मतलब ये है कि इनके प्रीमियम इंक्रीज होने की चांसेस ज्यादा है. नेक्स्ट इज क्लेम रिजेक्शन रेशियो. एक इंश्योरेंस कंपनी कितने क्लेम रिजेक्ट करती है, ये हमको आपको जानने की बात जरूरी है क्योंकि रिजेक्शन ही तो नहीं चाहिए हमको, राइट? तो इन केस ऑफ HDFC Ergo's केस, नॉट इन HDFC Ergo Optima Secure, HDFC Ergo का पूरा रेशियो है इज 2.47%. मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में जितने भी क्लेम्स HDFC Ergo को आ रहे हैं, सिर्फ 2.47 क्लेम्स 100 में से रिजेक्ट हो रहा है. इन केस ऑफ ICICI Lombard, द नंबर इज क्वाइट हाई इन कंपेयर टू HDFC Ergo, 14.11%. नाउ दिस नंबर ऑनेस्टली अलार्म्स मी कि एक कंपनी है जो 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी एक्चुअली, और 14% क्लेम्स आज भी रिजेक्ट हो रहे हैं. काफी बड़ा अलार्मिंग चीज है. हम क्लैरिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से मांगते रहते हैं, बट फिर भी ये काफी एक बड़ा रेड फ्लैग है. दिस इज समथिंग दैट यू शुड डिस्कस विथ योर एडवाइजर, एक्सपर्ट, हुएवर, बिफोर यू बाय द पॉलिसी कि क्यों है इतना हाई रेशियो, और एडवाइजर कैसे गारंटी लेता है कि रेशियो होने के बावजूद भी क्लेम्स वो सेटल करवा पाएगा. टिपिकली जो क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं वो रॉन्ग एडवाइस के लिए होते हैं, रॉन्ग गाइडेंस के लिए होते हैं कि आपको प्रपोजल फॉर्म कैसे भरना है, तो वो काफी बड़ा रीजन है. बट ऑल सेड एंड डन द रेशियो इज नॉट गुड, सो यू शुड डिस्कस इट विथ योर एक्सपर्ट बिफोर बाइंग द पॉलिसी. मूविंग ऑन टू प्राइसिंग. प्राइसिंग इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिकॉज सारे फीचर्स तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन फीचर्स के साथ पैसे भी भरना है, तो इट शुड बी अफोर्डेबल. सो इन केस ऑफ मिस्टर कुमार, लाइक वी ऑलवेज से, 30-year-old who's taking a policy for himself, his wife, and one kid who's 1 year old and lives in Mumbai and buying a sum insured of 10 lakhs, the premium for HDFC Optima Secure comes to 24,035 as we speak today when we are recording this video. And in case of ICICI Lombard Elevate, the premium comes to 13,964. तो बहुत ही कम प्रीमियम है अगर आप कंपेयर करें HDFC Ergo में. ऑलमोस्ट मतलब आधा प्रीमियम में आपको 10 लाख का कवर मिल रहा है. एक ही डिफरेंस है जो समझना बहुत जरूरी है कि HDFC Ergo आपको 2x कवर देता है, बट 2x कवर का प्रीमियम कभी भी डबल नहीं होता है.
तो वैसे भी ICICI Lombard is cheaper than HDFC Ergo in case of premiums. That is something that we need to understand. That's it. तो होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंसेस है प्लान्स में, कौन सा प्लान किस चीज़ के लिए अच्छा है, कौन सा प्लान कौन सी चीज़ के लिए अच्छा नहीं, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कैसे फेयर कर रही है क्लेम्स में, सर्विस में, सब कुछ। ऑब्वियसली ये जब मैं डिस्कस कर रहा था मैं खुद भी सोच रहा था कि कुछ चीज़ों में एक इंश्योरेंस कंपनी आगे, कुछ चीज़ों में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी आगे, तो डिसाइड कैसे करें, मतलब मैं वर्डिक्ट कैसे दूँ। एक्चुअली मैं जेन्युइनली बोलने की कोशिश करूँ तो वर्डिक्ट देना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा प्लान बुरा है। मैं अगर आपको रेकमेंड कर रहा हूँ तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पर्सनलाइज्ड एक कंसल्टेशन लीजिए कोई भी एक्सपर्ट के पास से कि आपकी जो नीड्स है उसको एक साइड पे रखिए और जो प्लान अवेलेबल है मार्केट में उसको एक साइड पे रखिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि कौन सा प्लान आपके लिए स्पेसिफिकली आपकी फैमिली के लिए सूटेबल है। वरना ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अलार्म करने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं कोई प्लान में अच्छी है बुरी है, तो आप जब डिसाइड कर रहे हो तो ये मटीरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट फाइनली कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एरिया में अगर कोई कंसल्टेंट है या जिसको एडवाइजर, एक्सपर्ट, एजेंट भी बोला जाता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है क्लेम्स में, जो सर्विस देता है बहुत सालों से, इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम्स होते हैं वो आपको मतलब लोगों को आपकी लोकेलिटी में सॉल्व करके देता है, ऐसे पर्सन से आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए जिसका क्लेम्स के बारे में अकाउंटेबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड आपके एरिया में बहुत फेमस है। अगर ऐसा एक्सपर्ट आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो बेशक ने क्या किया है कि सारे बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट जो है उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे एक कम्युनिटी बनाई है उसकी, जहाँ पे कस्टमर्स आके उनके साथ फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं और एडवाइस पा सकते हैं। ये जो एक्सपर्ट्स है ये कॉल सेंटर एजेंट्स नहीं है, ये कोई सेल्समैन नहीं है, ये लोगों के पास मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। एवरेज एक्सपीरियंस जो है 9.2 इयर्स का है, जिससे बेसिकली आपको ये सही एडवाइस भी देंगे, सही पॉलिसी खरीदने में हेल्प भी करेंगे, प्रपोजल फॉर्म भरने के लिए भी आपको हेल्प करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लेम्स में भी हेल्प करेंगे। नीचे एक नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको कहीं पे भी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस में, क्लेम्स में, कोई भी आपको क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और हमारी टीम आपको कनेक्ट करके हेल्प करेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एडवाइज़र, हमारे जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है उसके साथ भी कनेक्ट करेगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो अच्छा तो डेफिनेटली डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं जहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनीज को ब्रेक डाउन करते हैं, प्लान्स को ब्रेक डाउन करते हैं, इंश्योरेंस के बारे में और आपको जानकारी देते हैं जिससे आप राइट इंश्योरेंस खरीद भी सके, यूज़ भी कर सके, तो डेफिनेटली हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।